स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। बेटा जवाब जो है ना जरा प्रॉम्प्टली कोई एक बंदा जो है ना वो दे दिया करे, बिकॉज इट्स वेरी ऑड के एक बंदा बोल रहा हो और बाकियों की तरफ से जवाब ना आ रहा हो. सो आई रिक्वेस्ट, आज जो है ना, फातिमा आर यू लिसनिंग? यस सर. ओके बेटा, तो आज जो है ना आप प्रॉम्प्टली जवाब देती रहेंगी. कोई एक बंदा हम वो कर लेते हैं सो दैट के मुझे भी इंटरेक्ट करने में आसानी हो. सो लास्ट टाइम कहाँ पे थे हम लोग? सर जी ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. जी वो तो सी ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. स्लाइड कौन सी थी? क्योंकि मैं सिंडिकेट बी सी के साथ भी होता हूँ तो मुझे अब कंफ्यूजन है कि हमने कहाँ छोड़ा था. सर ये वाला कर लिया था हमने. ये कर लिया था, ग्रेट. ये सर ये भी हो गया था. ये वाला सर स्लाइड 25 से है. 25 से है? यस सर. अच्छा ग्रेट. 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यहाँ तक किया था. ऐसे ही है फातिमा? यस सर. Okay, great. So, so now we are given a sequence x of n equals u of n minus a raised to power n u of minus n minus 1, and we are interested in knowing the z transform of this. Now, as we know that in this case x of n is equal to x1 of n, we are saying that this is our x1 of n, this is my x1 of n, and this is my x2 of n, and I am merging both of these sequences into x of n, and now I'm interested in knowing what will be x of z. So x of x1 of z is, if I'm interested in knowing the z transform for this, that would be 1 over 1 minus z inverse, as it is u of n right-handed sequence, so the region of convergence will be the z or r greater than 1. In fact, it is z greater than 1. It's the same thing because z is equal to r exponential j omega. Exponential j omega का magnitude जो है 1 है, so z is greater than r, and r in fact is the radius, so we are saying that r is greater than 1 because of this 1. Okay, and a raised to power n u of minus n minus 1 minus a raised to power u of minus n minus 1, it is again 1 over 1 minus a z inverse, but because of this thing minus n minus 1 kind of thing which we did in the example, we had already done it in the example, this one, the z transform is same, 1 over 1 minus a z inverse, but the region of convergence is inside the shaded region. This green region is the region of convergence. So what we are doing here, we are saying that r is lesser than a in this case. So r is lesser than a. So there are different possibilities that if a is greater than 1, in that case the region of convergence will be this type, because a, for a the region of convergence is inward, and for this thing for 1 the region of convergence is outward, so the overlapping will be done in an annular region. So the region of convergence is this shaded region which is shown here. But if this is the situation, if a is lesser than 1, in that case there is no intersection of region of convergence 1 and region of convergence 2. Hence we will be saying that the z transform does not exist for this composite signal. Questions please. सर इसमें जो सेकंड पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इनवर्स जेड नहीं आएगा सर?
नहीं बेटा, आप देखें ना इसको। अगेन अगर आपने इसको कैलकुलेट किया होता तो इट इज 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। दोनों के जी ट्रांसफॉर्म सेम है, ओनली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो चेंज है। ये सारा प्रोसीजर जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राइट साइड पे। 1 - 1/1 माइनस ए इनवर्स सी जो आप बात कर रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल एंड अप विद दिस थिंग 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। गॉट इट? Yes, sir. Okay. Any other question? Fatma, नो सर। you are the monitor today. सर मैं वेट कर रही थी कि कोई और अगर क्वेश्चन है तो Okay. पूछ ले। क्लास के बिहाफ पे आज आपने बात करनी है, ठीक है? यस सर, ठीक है। Okay, great. So let's move further. And now rational transfer function and frequency response of differential equation. We have been doing it in discrete time Fourier transform context के किस तरह से हमारे पास difference equations होती हैं which we are using to implement our IAR filters. So that's the autoregressive portion. This is the autoregressive portion, and that's the moving average portion. And if we are interested in knowing the transfer function, then we will be taking the z transforms of both sides. And if I'm interested in knowing what will be the z transform of that, that would be k is equal to 0 to n ak, that's the constant, and y of z into z minus k, and that would be equal to k is equal to 0 to m bk x of z z minus k. And in fact that's is done with respect to z is equal to exponential j omega, because we were doing it for h of exponential j omega r is equal to 1 के लिए, but we can write it in z domain as well. H of z will be equal to what? K is equal to 0 to n bk z minus k divided by k is equal to 0 to n ak z minus k. So that's the transfer function. We can take any difference equation and we can convert it into the transfer function as well. So here are two examples. Let's do that, then you will be able to appreciate what we can do. So that's the first example. Y of n minus 3y n minus 1 is equal to x of n minus 0.5 x of n minus 1, and we are interested in knowing what is h of z. So this is my y of n minus 3y of n minus 1 is equal to x of n minus 0.5 x of n minus 1. So we will be taking the z transform of every term. Y of n का z transform y of z है, minus 3 will come as it is because it's just a constant. Y of n minus 1 का क्या है? Y of z into z inverse. In the z transform will in today's lecture probably as well. X of n का x of z है minus 0.5 x of z z inverse. Now taking y of z common, so 1 minus 3 z inverse, and that's equal to x of z 1 minus 0.5 z inverse. Y of z over x of z is in fact the ratio of the polynomials y of z and x of z. This is called h of z, the transfer function, and that is equal to 1 minus 0.5 z inverse over 1 minus 3 z inverse. And if we are interested in knowing what is my discrete time Fourier transform, all I will be doing h of z at z is equal to exponential j omega, or in fact we know that z is equal to r exponential j omega, but r is equal to 1 is a place जहाँ पे आपका discrete time Fourier transform जो है वो defined होता है, the unit circle. ये आपका z plane है, and that's the unit circle. So the z transform evaluated on this unit circle will be called the
dtft. So that's why we are saying it's z is equal to exponential j omega, and that's equal to 1 minus 0.5. Z is replaced with exponential j omega, exponential minus j omega हो जाएगा, and denominator में 1 minus 3 exponential minus j omega. Any questions beta? No, sir. And the second example is, where is the second example? Here it is gone. Okay, let's do it. इस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं. What's that? So it probably delete हो गई है. So y of n plus 0.5 y of n minus 1 minus 0.7 y of n minus 2, and that's equal to x of n minus 0.5 x of n minus 1 minus 0.6 x of n minus 2. So taking the z transform of individual terms, that would be y of z plus 0.5 y of z, z inverse minus 0.7 y of z, z minus 2 is equal to x of z minus 0.5 x of z, z inverse minus 0.6 x of z, z minus 2. Now again y of z is common, so that's 1 plus 0.5 z inverse minus 0.7 z minus 2, and that's equal to x of z, 1 minus 0.5 z inverse minus it's 1, 0.6 z minus 2, and finally y of z over x of z, which is h of z, and that's equal to 1 minus 0.5 z inverse minus 0.6 z minus 2, 1 plus 0.5 z inverse minus 0.7 z minus 2. So that's your h of z. And if you are interested in knowing h of exponential j omega, which is the dtft, that would be 1 minus 0.5 exponential minus j omega minus 0.6 exponential minus j2 omega, 1 plus 0.5 exponential minus j omega minus 0.7 exponential minus j2 omega. Questions? जी फातिमा, चले आगे बेटा, चले बेटा आगे. इनको तो कॉस साइन में कन्वर्ट नहीं करना ना, इनको तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल में रहने जी जी, ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं. चले आगे बेटा. Okay, this is very interesting example. So you are given one transfer function and you are asked to find what is the pole zero diagram for that. So 1 minus z minus 4 over 1 plus 3 z inverse, and in fact that that comes in the form of z to the power 4 minus 1 divided by z cube into z plus 3. This is the simplest form we can take whenever we have to plot the poles, and we will be moving in terms of z की powers, positive powers में लेके जाएं, z की power negative में ना रहें. ठीक है? So what I have done to make it with the power of positive powers of z, मैंने इसको multiply किया z raised to power 4 से, divide भी किया z raised to power 4 से, जो transfer function given था आपको. So that is z raised to power 4 minus 1
divided by z raised to power 4 plus 3z, and in fact that's equal to z raised to power 3 into z plus 3. ठीक हो गया? In fact that is 3. ये 3 है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ से क्या नजर आ रहा है? यहाँ से मुझे जीरोस मिल रहे हैं. जो न्यूमरेटर है that is associated with zeros, and जो denominator है that is associated with poles. So what this is indicating, z raised to power 0 पे आपके 3 poles रखे हुए हैं. So here you have 3 poles at z is equal to 0. z is equal to -3 पे आपके पास एक और पोल है. So z is equal to -3 पे आपके पास एक और पोल है. What about zeros? z is equal to 1 पे आपके पास 4 zeros मौजूद हैं. Now z is equal to 1 जो है that is not a point, that is in fact a circle. So ये जो point है, ये जो circle है, इस circle के ऊपर 4 zeros आपने place करने हैं जो कि equidistant होंगे. और equidistance के लिए आपने करना क्या है? The zeros at exponential j 2 pi k over 4. Why 2 pi over 4? Because you have 4 poles, 4 zeros. So that's why you are saying the k, मैं इसे 2 pi by 4. Why 2 pi? Because the whole circle is 2 pi. Divided by 4 means I have 4 zeros, and k means from 0 to 3 तक आप चलेंगे और आपको different locations मिलती चली जाएंगी. So पहला zero जो है वो k is equal to 0 में अगर करूं तो वो मुझे दे देगा 2 pi 0 over 4 which is 0. Next zero is at 2 pi 1 over 4, k is equal to 1. So that is located at pi by 2. Next zero is 2 pi 2 over 4 which is located as this, and the next one is at this location. So these are the zeros. ठीक हो गई बात भाई? Any questions? So two things to remember. वन, कि जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, जनरली ट्रांसफर फंक्शन आपको नेगेटिव पावर्स में गिवन होता है, और अगर आपको पोल जीरो प्लॉट बनाना हो तो कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव पावर्स ऑफ z, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए कि फाइंड आउट करना रूट आपका कौन सा है. सो डिनोमिनेटर्स जो है वो पोल्स के साथ एसोसिएटेड हैं, न्यूमरेटर्स जो है वो आपके जीरोस के साथ एसोसिएटेड हैं. सो इस केस में आपने देखा कि z क्यूब मकसद है कि आपके पास जीरोस पड़े हुए हैं, बट देयर आर द 3 जीरोस एट z is equal to 0 पे, एंड देयर इज वन पोल 3 पड़े हुए हैं जो कि 0 पे, और जो आपके पास एक जीरो पोल है वो z is equal to -3 पे है. रिमेंबर दैट पोल्स आर इंडिकेटेड एज दिस फॉर्म. दीज आर पोल्स और जीरोस जो हैं वो इस तरह से इंडिकेट करते हैं. सो दीज आर माय 4 जीरोस and these are my 4 poles. Any questions बेटा? सर ये जो हमने जीरो बनाए ये सर्कल में क्यों बनाए हमने? बेटा सर्कल में इस वजह से बनाए हैं. गुड क्वेश्चन. देखिए बेटा सर्कल में इस वजह से बनाए हैं कि आपके पास ये जो रूट नजर आ रहा है z raised to power 4 - 1 है. अब रूट आपको कहां पे मिल रहा है? रूट्स हैं आपके 1 पे मौजूद हैं. अच्छा 1 जो है वो पॉइंट नहीं है इस केस में, 1 एक सर्कल है, रेडियस r इज इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है. सो अगर ये z raised to power -8 होता तो इन दैट केस रूट आप फिर फाइंड आउट करते 2 into 2 under root, तो वो r इज इक्वल टू 2 into 2 under root पे पड़े हुए होते. अच्छा अब इस पड़े हुए हैं तो किस जगह पे प्लेस करें? क्या इस जगह पे मैं चारों के चारों डाल दूं, चारों के चारों इस जगह पे डाल दूं? दैट वुड बी अनफेयर. So in fact I have to place all the zeros on equidistant locations on this r is equal to 1 circle. So that's the formula you will be using. Z is equal to exponential j 2 pi k over 4. 2 pi किस वजह से? Because the whole circle is 2 pi radians divided by 4 किया हुआ है कि आपके पास 4 zeros हैं या 4 poles भी हो सकते हैं. एंड k इज इन फैक्ट लोकेशन आपको बताएगा नंबर कौन सा नंबर है, 0th 1 2nd 3rd. सो ये आपकी लोकेशंस आ जाएंगी. k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3 which are associated with 0 as 1 0 2 0 3 and 0 4. Have I answered your question beta? यस सर. सर अगर पोल्स के साथ यही वाली कंडीशन आती है तो हम पोल को भी इसी तरह सर्कल में प्लॉट करेंगे. एग्जैक्टली. सपोज अगर ये सिचुएशन हो जाए, सपोज अगर ये सिचुएशन हो जाती है
क्या था, c+3। अब क्या सिचुएशन हो रही है, अब आपके पास थर्ड ऑर्डर 0 है एट z इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑर्डर 0 है। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग थर्ड ऑर्डर 0। जीरोस हैं, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 0, सो इट्स 3 zeros। और देयर इज अनदर 0 एट z इज इक्वल टू -3, सो दिस इज अ 0 एज वेल। ये थर्ड ऑर्डर 0 है, ये सिंगल 0 है। एंड नाउ वी हैव 4 poles एट z इज इक्वल टू 1, and again the location will be done pole 1, pole 2, pole 3, pole 4. How it will be done? 2 pi over 4 into k is equal to 0, 2 pi over 4 into k is equal to 1, 2 pi over 4 into k is equal to 2, and 2 pi over 4 into k is equal to 3. So the first pole will be at 0 here, the second pole will be at pi over 2 at this location, and then it is pi at this location, and then it would be here. Agreed? यस सर। ठीक हो गई बात, चले आगे। सर ये भी बता दें कि हमने इसमें रेडियस 1 रखा है बिकॉज d⁴ -1 इज इक्वल टू 0 है। अगर इसको हम 1 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उसका रेडियस होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा बेटा, दोबारा बताइए सर क्या पूछ रहे हैं? आपने ये सर्कल जो बनाया है इसका रेडियस आपने किस कंडीशन पे रखा है? इस वजह से बन रखा है बेटा, z⁴ -1 इज इक्वल टू 0, रूट फाइंड करना है ना। तो z⁴ इज इक्वल टू 1 एंड z विल बी इक्वल टू 1⁴ 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ओके फातिमा, चले बेटा आगे। यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा जी, चलें इसको पहले मिटा देते हैं सो दैट के दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। This slide is not included in your book, that's from another book, Prokis की book से ये slide ली गई है, but this provides a very meaningful insight and the relationing between Z transform and time domain sequences. Okay. Okay. Let's start. Okay जी, this is सबसे पहली बात ये है कि now we are looking at finite duration signals. So this is a causal handed sequence. If I had to write this sequence, suppose this is my x of n. So x of n is what? फातिमा, x of n अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? सर एक a⁴n नो x of n की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। जस्ट राइटिंग दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इनटू टाइम डोमेन सिग्नल, दैट वुड बी डेल्टा ऑफ n। ऐसा ही है, दिस वन इज डेल्टा ऑफ n प्लस सपोज करते हैं कांस्टेंट जो है वो a है, तो a डेल्टा ऑफ n-1 प्लस b डेल्टा ऑफ, या a स्क्वायर कर दें या b कर लें, डेल्टा ऑफ n-2 प्लस c डेल्टा ऑफ n-3, समथिंग लाइक दैट। इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो a कह देते हैं, इसका b है, इसका c है, इसका 1 है। ठीक है, तो लिख सकता हूं ना ऐसे? यस सर। Okay, what will be x of z in this case? That would be 1 plus a z inverse plus b z-2 plus c z-3। मैं अगले दो टर्म्स को छोड़ दिया मैंने। सो इन दिस फॉर्म। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कौन सी जगह होती है? जहां पे फाइनाइट वैल्यूज मुझे x of z की मिल रही होती हैं। इट्स अ 3-डायमेंशनल प्लेन, जहां पे मुझे फाइनाइट वैल्यूज x of z की मिलेंगे, दैट वुड बी माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो व्हाट अबाउट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ राइट हैंडेड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल? अब आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? सर a greater than 0। हाँ जी,
देखिए इसमें कौन सी ऐसी चीज z की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे x ऑफ z जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। z की कौन सी वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो x ऑफ z इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट इज z इज इक्वल टू 0 जैसे ही डालते हैं इसके अंदर आपका x of z इनफाइनाइट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। सो दैट्स द सिचुएशन हियर। सिमिलरली ये इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? बेटा अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछते सर एक बार जाए। फिर से एक्सप्लेन कर दें। बेटा ये मेरा सीक्वेंस था x ऑफ n इज इक्वल टू, मैंने रैंडमली उठा लिया x डेल्टा ऑफ n, कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस हो, सपोज 1 2 3 अगर ये है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? x ऑफ n अगर मुझे लिखना हो तो दैट इज डेल्टा ऑफ n प्लस 2 डेल्टा n माइनस 1 प्लस 3 डेल्टा n माइनस 2, यही है ना? यस सर। यही है। इसका x ऑफ z अगर मुझे लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 1 डेल्टा ऑफ n का 1 होता है, ये हम पहले देख चुके हैं, शायद आपको याद हो। यस सर वो याद है। गुड। तो द नेक्स्ट वन इज a, डेल्टा ऑफ n का 1 है और जो आपका शिफ्ट आ रहा है उसकी वजह से z इनवर्स आ गया। b का b है, डेल्टा ऑफ n का 1 है और -2 की जो शिफ्ट है उसकी वजह से z -2 आ गया, प्लस c z -3 आ गया। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो जगह है जहां पे मेरा x ऑफ z हैज गॉट सम फाइनाइट वैल्यूज। सो आई विल बी लुकिंग फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ z जहां पे मेरा x ऑफ z इनफाइनाइट हो जाए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z x of z is finite, even at infinity x of z is equal to finite. Put करें z is equal to infinity, a over z will be equal to 0, b over z minus 2 that would be equal to 0, c over z cube that would be equal to 0. So x of z will be having finite values. लेकिन जैसे ही मैं z is equal to 0 प्लेस करता हूं तो x of z infinite हो जाता है. So it means the region of convergence for this finite duration right-handed sequence is entire z plane except z is equal to 0. Fatma, have I answered your question? Yes sir. Okay. Now we are looking at the anti-causal signal. इसको रिवर्स कर दिया इस सिग्नल को. So इस केस में अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा x of n क्या होगा? That would be delta of n. Delta of n plus a plus delta of n plus 1. Great. Delta of n plus 1 plus b delta of n plus 2 plus c delta of n plus 3. और अगर हम इसका z ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a z प्लस b z स्क्वायर प्लस c z क्यूब, इसी तरह से हो जाएगा ना? यस सर। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ z जहां पे ये x ऑफ z इनफाइनाइट हो जाएगा? सर इंफिनिटी पे। Infinity. So that's why for these anti-causal finite duration signals we are saying that the region of convergence is entire z plane except z is equal to infinity. Agreed? Yes sir. Great. Now two-sided sequence है, finite duration है, इसके अंदर कुछ right-handed sequence भी है, कुछ left-handed sequence भी है. So of course the final signal will be these components plus these components. ऐसा ही है ना? Yes sir. So, इस पोर्शन की वजह से हम कहते हैं कि the region of convergence is entire z plane except z is equal to 0. इस पोर्शन की वजह से हम कह रहे हैं कि it is entire z plane except z is equal to infinity. So overall इस two-sided sequence के लिए हम क्या कहेंगे? Because it is having contribution from the right-handed side and from the left-handed side. So naturally the region of convergence will be taking contributions from the right-handed side and the left-handed side, and you will be saying that the region of convergence for this two-sided finite duration sequence will be the entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. Yes sir. इस तरह की अगर कोई चीज हो इस तरह की कोई चीज हो, फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है, सपोज a b and this is c and this is d and this is 1, so क्या हो जाएगा सीक्वेंस आपका? x of n is delta d
delta of n plus 2 plus c delta of n plus 1 plus delta of n plus a delta of n minus 1 plus b delta of n minus 2, और अगर मैं इसका x of z लिखूंगा तो क्या हो जाएगा d z स्क्वायर प्लस सी z प्लस 1 प्लस a z इनवर्स प्लस b z माइनस 2। अब इसके अंदर जीरो डालते हैं तब इन दो टर्म्स की वजह से ये डाइवर्ज कर जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसके अंदर इंफिनिटी डालते हैं अगर z की वैल्यू तो इसका मतलब है इन दो टर्म्स की वजह से वो इनफाइनाइट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग that the region of convergence for this two-sided finite duration sequence is the entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. Agreed? Yes, sir. Okay, now we are moving towards infinite duration sequences, which we have already done. That if we have a right-handed infinite duration signal, the region of convergence will be outside the radius of some circle, right-handed sequence के लिए. If it's an left-handed sequence or anti-causal sequence, in that case the region of convergence is inside the radius of some circle, and the two-sided sequence के लिए that would be an annular region or ring type region. We have already done examples related to all these three cases. Any questions regarding this? No, sir. Good. अच्छा जी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। देखिए आपके पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस है और दिस इज समथिंग 1/1 minus a z inverse kind of thing, and a is lesser than 1. ऐसा ही है ना? a is lesser than 1, ये आपका a रखा हुआ है, पोल रखा हुआ है, और अगर मैं इसे देखना चाहूं तो इट इज, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जीरो और पोल्स अगर आपको प्लॉट करने हो तो दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल. सो दैट्स द पोल एंड दैट्स द जीरो. सो यहाँ पे एक जीरो पड़ा हुआ है और ये आपके पास पोल है. जीरो इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट राइट नाउ द पोल की वजह से हम देख रहे हैं. अच्छा, मैं जनरली तो फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स देखता हूं, लेकिन राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट विल बी द टाइम डोमेन सीक्वेंस. We have in fact talked about this. देखिए अगर a lesser than 1 है तो इसका जो टाइम डोमेन सीक्वेंस है वो क्या है? a raised to power n u of n. आमना यही है बेटा? फातिमा? Yes, sir. और हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, if a is lesser than 1 then it's a decreasing signal. ठीक है, ये पिछले 4 हफ्तों से ये बात हम करते आ रहे हैं, बोथ इन DTFT के कॉन्टेक्स्ट में भी और Z डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में भी. If a is lesser than 1 then it's a decreasing sequence, so that's the sequence you are getting. ठीक है? Yes, sir. If a is equal to 1, if पोल अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, in that case it is 1/1 minus z inverse, means it is u of n है. So this is your u of n, x of n is equal to u of n. और अगर a जो है that is outside the pole, outside the unit circle, in that case that's a increasing function. ये तो हम ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पोल जो है वो इधर पड़ा हुआ है. कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इस पोल में और इस पोल में? दोनों केसेस में आपका a जो है which is location of the pole that is lesser than 1. ऐसा ही है ना? Yes, sir. फर्क क्या है? Sir, conjugate है. फातिमा क्या हो गया बेटा? कॉन्जुगेट है, रियल एक्सिस पे रखा हुआ है. सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. वो है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखें तो दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू 0, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू π/2. यही है ना जो सर्कल हम बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल j ओमेगा जो सर्कल है वो क्या है? ये सर्कल है, किस तरह से फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा आप यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे होते हैं. सो राइट नाउ ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई है और ये 2π/3. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे प्लेस था, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे प्लेस था, अब कहाँ चला गया है? अब यहाँ से उठा है और इधर आ गया है.
सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे आ गया है। सो इसका इफेक्ट देखिए टाइम डोमेन में क्या आ रहा है। टाइम डोमेन में आपको ऑसिलेशंस मिल रही हैं, सिग्नल उसी तरह से डिक्रीजिंग है, बट यू आर गेटिंग मैक्सिमम ऑसिलेशंस इन योर सिग्नल। दैट ये आपके पास पहला सैंपल है, अगला सैंपल शिफ्ट चला गया, रिवर्स हो गया, फिर अगला सैंपल रिवर्स हो गया, फिर अगला सैंपल रिवर्स हो गया। सो दैट्स द ऑसिलेशन यू आर इंट्रोड्यूसिंग in your signal because of shifting this pole from omega is equal to 0 to omega is equal to pi. Similar behavior can be seen where a is equal to 1 and a is greater than 1. The behavior is same. When a is lesser than 1, it is decreasing. When a is equal to 1, it is constant. When a is greater than 1, it is exploding, it is increasing. But when omega is equal to 0, DC component, there is no oscillations, there is no frequency आपको नजर आ रही हो यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल के अंदर। लेकिन जैसे ही आप ओमेगा इज इक्वल टू पाई करते हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग और ऑब्जर्विंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम ऑसिलेशंस इन योर टाइम डोमेन सिग्नल्स। क्वेश्चंस प्लीज। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। सर हाँ, जब हमने पोल्स निकाले थे तो हमने कहा था कि अगर मेरा पोल 3 पे है तो वो z इज इक्वल टू 3 करके आता था, तो उसमें तो साथ कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं आता था। तो अगर अभी हमने इसको ये ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। नाम क्या है आपका? सर हमजा। लेकिन सर आपने क्या कहा, किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हमजा बेटा ये बताएं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। पहले आपका क्वेश्चन अब जरा बताएं ना, इससे रिलेटेड कोई आप बात पूछ रहे थे? सर इससे पिछली एग्जांपल जो थी स्लाइड पे। इससे पिछले एग्जांपल पे आ जाते हैं जी, बोलें। मेरा ख्याल है इससे आगे की आप बात कर रहे हैं सर, जिसमें अगर मेरे नीचे z+3 आ रहा है तो, या z-3 आ रहा है या z+3 आ रहा है, तो मैं उसको z इज इक्वल टू 0 करके वो अगली तरफ लेके जाता हूँ, तो उसके साथ कोई फेस टर्म तो नहीं आ रही होती, सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा होता है। तो अभी जो आपने कहा है कि साथ पाए आ रहा होता है, वो नहीं, किस तरह आ रहा है? बेटा हमजा सुनो बेटा, सुनो गौर से सुनो। दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन, और इस ट्रांसफर फंक्शन से आपने पोल जीरो प्लॉट बनाया है। अभी मैंने कोई और बात तो इससे रिलेटेड नहीं की थी। इसमें कोई कंफ्यूजन थी आपको पोल जीरो प्लॉट बनाने में कि दीज आर रिलेटेड टू योर जीरोस, दिस डिनोमिनेटर इज रिलेटेड टू योर पोल्स? यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। इसके अलावा मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं की थी, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। दैट वाज जस्ट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। बात कर मैं इस एग्जांपल के वैसे कह रहा हूँ कि आपने अभी पोल जो है वो प्लॉट नेगेटिव साइड पे किया है, तो अगर वो फाइंड करेंगे हम इस तरह ट्रांसफर फंक्शन से, तो वो मतलब किस तरह आएगा? मैं इसीलिए अब देखिए इस चीज का, यही चीज आपको दिखाने का मतलब है, इस स्लाइड्स के दिखाने का मतलब, ये आपकी बुक की स्लाइड्स भी नहीं है, और आपको दिखाने का मकसद ये है कि चीजों को लिंक कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट आपका किस तरह से बन रहा है। कि देखिए लोकेशन तो कहीं पे भी हो सकती है, ट्रांसफर फंक्शन तो ये भी एच ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वन भी हो सकता है, और जी ओवर जी प्लस वन भी हो सकता है ना। दैट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि इसमें आपका जो जीरो है वो z इज इक्वल टू 0 पे पड़ा है, इसमें भी z इज इक्वल टू 0 पे पड़ा है, बट पोल यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पे पड़ा है, और यहाँ पे पोल z इज इक्वल टू -1 पे पड़ा है। सो व्हाट इज द इफेक्ट कमिंग फ्रॉम z इज इक्वल टू -1 टू z इज इक्वल टू +1 ऑन द टाइम डोमेन सिग्नल पे क्या फर्क पड़ रहा है? बिकॉज z इज इक्वल टू 1 जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 0 के साथ एसोसिएटेड है, और z इज इक्वल टू -1 जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू पाई के साथ एसोसिएटेड है। सो दैट्स व्हाई आपका जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसके अंदर आपको ऑसिलेशंस नजर आ रही हैं, जबकि अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे पोल पड़ा हुआ है तो इसमें आपको वो ऑसिलेशंस जो है वो नजर नहीं आ रही, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 0 इज एसोसिएटेड विद डीसी कंपोनेंट, और इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है फ्रीक्वेंसी 0 है। Have I answered your question? Yes, sir, understood. Great, जबरदस्त। Now let's move forward. And now फातिमा, जो आप कॉन्जुगेट की बात कर रही थी वो ये कॉन्जुगेट पेयर पड़ा हुआ है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखें
तो क्योंकि ये कॉन्जुगेशन मौजूद है, एक तो ये कि a इज लेसर देन 1 है, सो a इज लेसर देन 1 का क्या मतलब हुआ कि मेरा सिग्नल जो है वो डिक्रीजिंग होगा, दिस आई नो, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये पाए पे जब पड़ा था तो जरा गौर करें, पाए पे पड़ा था तो मैक्सिमम आपके पास ऑसिलेशन थी, एक सैंपल इधर एक सैंपल इधर, एक सैंपल ऊपर एक सैंपल नीचे, दैट्स द मैक्सिमम ऑसिलेशन यू कैन अचीव विद दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मैक्सिमम ओमेगा इज इक्वल टू पाई इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डिस्क्रीट डोमेन। बाकी ये जो चीज आपको नजर आ रही है, यू नो, जब भी आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये चीज आपको जो 0 से 2 पाई तक नजर आती है, एंड इनफैक्ट दैट्स द रेप्लिका। अगर ये पाई है, माइनस पाई है और ये पाई है, सो इनफैक्ट दीज आर द रेप्लिकास, माइनस पाई और पाई के दरमियान जो रेप्लिका है, सो दैट इज, ये यहाँ पे रेप्लिका है और ये आपके पास जो यूनिकनेस है वो यहाँ पे है, ठीक है। और फिर रेपिटेशन है बिकॉज ऑफ दिस सर्कल। नाउ जब आप इधर आते हैं तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब आप ओमेगा इज इक्वल टू, सपोज दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो इस बात का मतलब ये हुआ कि टाइम डोमेन सिग्नल के अंदर ऑसिलेशन तो है, but that oscillation is not corresponding to omega is equal to pi, which is the maximum frequency content in your discrete time sequence. So that's why, अब अगर आप गौर से देखें तो वो जो स्लो चेंज है वो आपको नजर आ रही है। Now that's the slow change. टाइम डोमेन में ये आपको जो ऑसिलेशंस हैं वो ये नजर आ रही हैं। It is decreasing because a is lesser than 1. अगर हम यहां जाएं तो ऑसिलेशन इस तरह की है। सॉरी फॉर माई ड्राइंग, ये ऑसिलेशन आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा इधर हम बेहतर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। दैट्स, ये ऑसिलेशंस आपको नजर आ रही हैं, एंड दीज आर द ऑसिलेशंस एज वेल, एंड इट्स ऑब्वियस दैट ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे वी हैव ऑसिलेशंस, बट द ऑसिलेशंस या फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर है। Now, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर नीचे वाली, नहीं सर नीचे, सेम है। अच्छा नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाली, you are right. So this is F1, this is F2, and F2 is greater than F1 because oscillation जहाँ पे ज्यादा है ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है। सो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4 से रिलेटेड ऑसिलेशंस हैं और यहाँ पे आपकी ओमेगा इज इक्वल टू पाई से रिलेटेड ऑसिलेशंस हैं, एंड सिमिलर फिनोमेना दैट व्हेन, अब ये एनवेलप जो है वो क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज a इज लेसर देन 1, सो दैट्स व्हाई आपका पोल जो है वो अंदर रखा हुआ है, सो इट्स अ डिक्रीजिंग सिग्नल। हियर इट इज a इज इक्वल टू 1। ऑसिलेशंस उसी तरह से हैं, ऑसिलेशन में फर्क नहीं है बिकॉज द पोल्स आर प्लेस्ड एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 4, बट क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है तो एनवेलप जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया है। और इसी तरह से व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस इट्स इंक्रीजिंग, एनवेलप इंक्रीज कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी इज सेम। ठीक हो गई बात? यस सर। हमजा, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। गुड, अच्छा जी, मेरा ख्याल इसको यहीं रोक देते हैं और कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज करेंगे और आपकी अटेंडेंस कर लेते हैं।